चलिए शेयर स्क्रीन भी ऑन कर देते हैं. राइटिंग आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. राइटिंग शुड वर्क. So the chapter name is electrostatics. Okay, yeah, electrostatic. Electromagnetism. Actually, half of the physics, complete physics को अगर consider करें, then half of the complete physics is actually based on electrons, effect of electrons. Okay, so electromagnetism is a branch of physics known as electromagnetism is a branch of physics in which we do the study of electric and magnetic interactions. Okay, and those and both electric and magnetic interaction actually get generated by electrons. So जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के दोनों इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, दैट कंप्लीट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. So out of this electromagnetism, the first topic which we are going to cover is electrostatics. So in this topic, electrostatics, or I should say in this chapter, electrostatics, we are going to study about all the interactions of electric charges when it is at rest. जब वो रेस्ट पे है तो उसके सारी प्रॉपर्टीज, उसके सारे इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं इन द टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन व्हेनेवर वी सेज दैट ऑल द इंटरेक्शंस व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट. सो कंफ्यूजन क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज विल स्टार्ट मूविंग, इट विल हैव मोर प्रॉपर्टीज, बट ऑल दोज प्रॉपर्टीज जो कि उसके पास रेस्ट में था, ऑल दोज प्रॉपर्टीज विल रिमेन देयर. ओके, सो जब चार्ज मोशन में चला जाए, देन ऑल्सो इट विल शो all the property which was there when the charge was at rest. So whenever the charge is in motion, we will have both the properties due to charge in motion and properties due to charge at rest. So motion में जाने के बाद रेस्ट की प्रॉपर्टीज डिसअपियर नहीं हो जाते. Many times students ask like, sir, charge तो motion में है, so why you are saying that charge is having the properties which was there in rest? So rest वाली properties motion में जाने के बाद भी exist करते हैं, ठीक है. But in this topic we will study only those properties which was there when charge was at rest. सिर्फ उन्हीं properties के बारे में study करेंगे. That doesn't mean कि charge motion में आने के बाद वो properties disappear हो जाते हैं, ठीक है. सो हाँ, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आई एम रिकॉर्डिंग इट, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है. अच्छा, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग जूम, आई एम रिकॉर्डिंग माई कंप्लीट कंप्यूटर. ओके, so if someone is recording computer, you will not see the notification. In my laptop it is easy to record computer than Zoom, ठीक है. and quality also, Zoom की quality अच्छी नहीं होती, give some error, but screen recording is better. Okay, so you can note it down, these two definitions.
Everyone done? Okay. दोपहर में 10 मिनट भी नहीं लाया ना, अच्छा उधर क्लास है आपके आज? नहीं आज अल्टरनेट डे होता है, कल भी नहीं होता है। So everyone done? Can we move to next slide? Okay. Next, as we are going to study about all the properties of charge, so this is the two different definitions of charge. Actually, there are two properties of material. There are total three properties of matter: charge, mass and space. Okay, so इनमें से दो प्रॉपर्टी जो है चार्ज एंड मास, इन दो प्रॉपर्टीज के कारण ही वी हैव ऑल दोज प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज और ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज जस्ट ड्यू टू दिस मास एंड चार्ज. सो फॉर ऑल द फिजिक्स और केमिस्ट्री, charge and mass are the base. Means we know that there is something called charge, we know that there is something called mass. No one can ask why the material have mass, why the material have charge. Even no one can ask why two masses interact with each other, why two charges interact with each other. ये चार क्वेश्चंस आप कभी नहीं पूछ सकते हैं, किसी से नहीं पूछ सकते. ये मैटर के पास चार्ज क्यों होता है, मैटर के पास मास क्यों होता है, मास एक दूसरे से इंटरेक्ट क्यों करते हैं, चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट क्यों करते हैं. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. बेस्ड ऑन दीज फोर प्रॉपर्टीज, चार्ज, मास, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ मास, बेस्ड ऑन दीज फोर प्रॉपर्टीज यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट इफ समवन विल आस्क कि चार्ज क्यों है, मास क्यों है, वी जस्ट कांट एक्सप्लेन इट. ओके, इवन देन we have a definition for charge and mass based on its some of the properties. So if you want, you can note it. Spelling is correct, no? Charge, correct. Okay, so please note it down. And I don't think these two definitions need any explanation. They are very simple. So you will just read it and you will understand it. आज मौसम कुछ बदला हुआ है ना, आज एसी नहीं चल रहा. एसी का मौसम है नहीं, कल तो गर्मी नहीं, है. एसी नहीं चल के आता तो लगती है बस. अब अंदर बैठे ना तो पंखा चल रहा, नहीं चला तो गर्म नहीं है. हमने मुझे याद है कि 3-4 दिन के बीच में एक बार मैं ऑन करता था और आज तो एकदम से फील ही नहीं आ रही है. घर के अंदर भी कल बहुत देर तक पंखा एसी दोनों बंद करके बैठे. हमारे ऊपर तो बड़ा अच्छा है, हवा बहुत अच्छी आती है, लेकिन हवा उल्टी आती है, रसोई से निकल करती है, कमरे से बाहर निकलती है. तो रसोई में खाना बनता है तो पूरा घर मिर्ची डालो तो उसके इसमें पूरे घर में फैल जाती है खाने वाली.
Everyone done? Everyone? ठीक है. So next, here we have some properties of charge. Most of the property you must know it, but I will just explain all the properties one by one. So like charges repel each other. आपको पता है, if you have two same charge, positive, they will repel each other. If you have same charge, negative, they will repel each other. Similarly, unlike charges attract each other. If you have one positive charge, one negative charge, they will attract each other. Okay? Second, charge is a scalar quantity, and it can be of two types, positive or negative. I don't think any explanation is required. Third, charge is quantized. What is the meaning of charge is quantized? Can someone give me some idea what is the meaning of quantized? No one. You tried to say something, but you use the wrong word, energy. It's not like energy. No. This word quanta is not a word related to Planck's constant or energy. It is a simple English word. So quantized means like the number of student in a class. Number of student in a class. Either it could be 1, it could be 2, it could be 3. You can't say that I have 3.5 students in a class. I can't say that I have 1.2 student in a class. So if something is in a packets, as you said, कि एक है, 2 पैकेट है, 3 पैकेट है, you can't say that I have 1.5 packets. Okay? So if something is in multiple of some smallest quantity, कि आपके पास कितना भी मटेरियल हो, वो एक मल्टीपल में होगा. फॉर एग्जाम्पल मनी, I can say that I have purchased something in 99.99 rupees. Okay? But no one can say I have purchased something in 99.999 rupees. आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है? So हमारे यहाँ 1 पैसा is the unit of money. So all the money will be multiple of 1 paisa. Okay? Similarly, number of students, it will always be in multiple of 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So charge is also quantized. That simply means that if we have an object, it could have a charge equal to 1 electron. It could have not necessary. In this case, especially in this case, it's not multiple of whole number. But it will be no, it's not like here for this charge thing. In case of charge, one object can have a charge equal to 1 electron. So 1 electron is actually equal to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. So depending upon unit, you can say whether it's a whole number or not. So अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं, like this object is having charge equal to 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, then it is whole number. But अगर same charge को हम कूलम्ब में बात करेंगे, then it will not be a whole number, but it is quantized. Either it will be quantized means it's a multiple of something. For example, this object could have charge 1.6 into 10 to power 19. It could have a charge equal to 3.2 into 10 to power minus 19. Not everything. Mass is not quantized.
all the values are possible for mass. मास सभी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इवन देयर आर मल्टीपल प्रोटॉन्स हैविंग डिफरेंट मास, बट नो, it can't have a value between these two numbers, or it can't have a value less than 1.6 into 10 power minus 19. How is it possible? Because one electron is equal to this. So if you will put one electron in this object, it will be 1.6 into 10 power minus 19. How you will put, if someone will say, please make a charge of 0.8 into 10 power minus 19 coulomb. That is not possible because you can't put a half electron on this object. ठीक है? So half electron नहीं डाल सकते. Either it could be 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 into 10 power 19 into 10 power 19. So एक फिक्स मिनिमम नंबर है और इस नंबर के मल्टीपल में ही चार्ज पॉसिबल है. ओके, डजंट मैटर वेदर इट्स इंटीजर और नॉट, वो इंटीजर हो या ना हो, लेकिन इसी नंबर के मल्टीपल में होगा. काउंटिंग हमेशा इंटीजर होता है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीजर हो गया. मनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1 बनाया गया, इसलिए वो मल्टीपल होने के साथ साथ इंटीजर भी हो गया. बट इन केस ऑफ चार्ज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज नॉट इंटीजर, सो इसका मल्टीपल इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट द चार्ज विल ऑलवेज बी इन द मल्टीपल ऑफ दिस. इस नंबर का मल्टीपल होगा और इंटीग्रल मल्टीपल होगा. ठीक है? सो simply meaning of quantize is you have a smallest value and everything will be integral multiple of that value. So ये वैल्यू इंटीजर हो या ना हो, लेकिन इसके बाद के सारी वैल्यू इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे. ठीक है? So if someone will ask how much charge an object is having, we can simply say Q is equal to n into E, number of electrons into the value of E. हाँ, एक बात और, E की वैल्यू हमेशा 1.6 into 10 power minus 19 होती है. We know that the charge of electron is negative, but E की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है. If someone will ask कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, if someone will ask कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस E चार्ज होता है. ओके, E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, फिर भी हम E को पॉजिटिव ही मानते हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज माइनस E. सो E को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है? सो दिस वाज थर्ड वन. नाउ कमिंग टू फोर्थ. ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में के अंदर चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है. यू कांट क्रिएट चार्ज, यू कांट डिस्ट्रॉय चार्ज. चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. यू कैन प्रोड्यूस इट, प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग, बट यू कांट क्रिएट इट. क्रिएशन का मतलब है वो कुछ नहीं था एंड यू हैव जस्ट क्रिएटेड समथिंग. ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, नेट मीन्स टोटल, so total charge will always remain constant. अच्छा, isolated system means like this. If we have a isolated system means जहां मास इंटर नहीं कर सकता है, आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है. Even anything, heat can not flow. Not vacuum. It's a closed. It's a closed like this room. अगर मैं इस रूम का डोर परफेक्टली लॉक कर दूं और जितने गैप्स हैं उनको बंद कर दूं, सो दिस रूम विल बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम. इस रूम, हाँ, सिंपल आइसोलेशन मीन्स मास एंड एनर्जी मस्ट नॉट ट्रेवल फ्रॉम दैट सिस्टम. उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता, उस सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता. हाँ, इनसाइड सिस्टम इट कैन ट्रेवल. ओके, सो आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. सो इसके पास चार्ज अभी लेट्स से 5 कूलम है. मैंने इसको सेपरेट कर दिया. ओके, आई मेक इट डबल, इसको डबल कर दिया. सो नाउ लेट्स से दिस इज हैविंग 10 कूलम चार्ज, देन गारंटेड दिस विल हैव -5. ओके,
Another example, let's assume that this is having a combined, this is having a charge of 4 कूलम. हमने इसको सेपरेट किया और इसके पास 20 कूलम चार्ज हो गया, तो गारंटेड दिस विल हैव -16, यानी टोटल विल रिमेन 4. टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था, बिकॉज दिस इज आइसोलेटेड, कहीं से आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता. लेट्स एज्यूम दैट टोटल चार्ज इज 0. अगर ये परफेक्टली इसके पास 0 चार्ज है एंड यू क्रिएटेड चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट पे अगर 10 कूलम चार्ज क्रिएट किए तो गारंटेड दूसरे ऑब्जेक्ट पे -10 कूलम चार्ज होगा. मीन्स द सेम थिंग, टोटल चार्ज विल रिमेन सेम 0 0 जो स्टार्टिंग में था. ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. So whenever you will try to produce charge, it will get produced in pair. Positive charge produce होगा तो guaranteed somewhere the negative charge will get produced. You can't just produce one type of charge. एक type of charge को आप produce नहीं कर सकते हैं. हमेशा both positive and negative charge will get produced together and it will guaranteed be equal. You can't just say कि मैंने +5 और -10 प्रोड्यूस कर दिया. ओके, whenever the charge will get produced, +5 -5, +10 -10, +12 -12 equal, and that production is called pair production. ठीक है. Even if you want to destroy it, not you can't destroy it, but if you want to, I don't know the correct word क्या है, but if you want to मर्ज दो चार्ज, इस पे +5 था, इस पे -5 था, इफ यू विल कंबाइन देम तो टोटल चार्ज विल बिकम 0. सो वो +5 और -5 दोनों एक साथ डिसअपियर होंगे. ओके, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके एक साथ डिसअपियर हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन. ओके, ओके, व्हाट आई सेड इज कि whenever we try to produce a charge, it will get produced in pair only. जब भी आप चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे वो पेयर में ही प्रोड्यूस होगा. If you will produce positive charge, at the same time a negative charge will get produced. Okay, चार्ज जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं. Simply means you can just transfer some of the charge from one object to another object. So अगर हम यहाँ से 5 कूलम चार्ज निकाल के इसमें डाल देते हैं, so this will become +5 and this will become -5. So this process of producing charge, positive and negative both, is called pair production. Similarly, अगर दो चार्ज आपके पास है, दोनों को कंबाइन करते हैं, दे विल डिसअपियर. वो दोनों चार्ज डिसअपियर हो जाएंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन. ठीक है, तो चार्ज को हम लोग पेयर में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पेयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, बट आई डोंट नो, कंबाइन करके उसको खत्म किया जा सकता है. ठीक है. 5 number, I will like you to read it first, then I will explain. Option 5 एक बार पहले पढ़ लीजिए, then I will explain. Yeah. Annihilation. Yeah. Everyone read option 5. Sorry, property number 5. Just read it.
Done? Okay, let me explain it. Now there are 3 states of motion. आपने पढ़ा होगा there are 2 states of motion. I am just saying it, it's not wrong. There are 3 state of motion. First, rest. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है. सेकेंड, it can move with constant velocity. It can move at constant velocity. And third, it can move with an acceleration. Okay? So, rest, non-accelerated motion and accelerated motion. So, 3 तरह के मोशन हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में. So, the charge shows 3 different type of properties in these 3 states of motion. So whenever the charge is at rest, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो it shows all the electric properties, electric field, electric force, electric ये, electric वो, electric potential, electric everything. So all the electric properties can be seen when a charge is at rest. जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सारी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट. करंट जब मूव करता है तभी होता है. ओके, नेक्स्ट, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से, नॉट स्पीड, इट शुड बी कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुगेदर विथ इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिक इज जस्ट जनरेटेड बाय अ मूविंग चार्ज. चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी. सो जब रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मोशन में आया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जनरेट हो गए. ठीक है. थर्ड, सेम चार्ज इफ इट विल स्टार्ट मूविंग विथ, if it will be move with an acceleration. Doesn't matter whether the acceleration is constant or variable. वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है फिजिक्स के टर्म्स में. ठीक है. सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with some acceleration, it will start producing radiations, light, electromagnetic waves, photons, उसके बहुत से नाम हैं. ठीक है. So electromagnetic waves produce करना शुरू कर देगा together with electric and magnetic. So electric भी, magnetic भी and उसके साथ electromagnetic waves भी produce होने चले शुरू हो जाएंगे. So you can see कि पूरा इलेक्ट्रिक चैप्टर इज रिलेटेड टू चार्ज, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चैप्टर इज रिलेटेड टू चार्ज, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस द लाइट और क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, वो सारा टॉपिक इज आल्सो जनरेटेड बाय चार्ज. तो चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस लाइट जनरेट करता है. So whatever light we have in our house or everywhere, all the lights, most of the lights get generated by charge. चार्ज के अलावा सिर्फ स्पेशल केसेस में ही लाइट्स जनरेट होते हैं. So all the radiations generated by charge, all the magnetic fields generated by charge, all the electric fields generated by charge. So charge at rest can produce only electric field. Charge in constant motion generate electric field with magnetic field. Charge in accelerated motion will generate electric field, magnetic field plus electromagnetic waves. Clear? No, हाँ. Moving means moving with constant velocity, then acceleration will be zero na. So if charge is moving with constant velocity, it will generate electric plus magnetic. Clear?
Now you can note it down. And let me know when you finish. Unaccelerated charge, हाँ, unaccelerated means constant velocity. On accelerated one, so accelerated charge will produce electric, magnetic and electromagnetic. It will produce all three. That is not possible. Constant velocity means no acceleration. Acceleration means no constant velocity. Clear? Constant velocity means no acceleration. If acceleration is there, constant velocity will not there. So constant velocity means it's not changing. It's not changing means no acceleration. If it's changing, it will not remain constant. ठीक है? So accelerated means not constant. Quantum means a smallest unit. Quantum means that there is something called smallest. उससे छोटा वो नहीं हो सकता है. छोटा मीन्स उससे कम वो नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यू कांट हैव लेस देन 1 स्टूडेंट. ठीक है? सो दैट इज कांस्टेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट मास और एनीथिंग एल्स लाइक स्पेस, लेंथ, साइज, it could be smallest, smaller. There is no limit on the smallest thing. How small could be time, how small could be length. So time and length के लिए smallest नहीं defined है. But here we have a smallest charge in the world, that is E, electron. और सारे चार्ज उसी के मल्टीपल में होते हैं.
that is called quantum of charge. Energy, where is energy? Charge will be a multiple of E only. E 1.6 into 10 power minus 19. So सिर्फ और सिर्फ 1.6 into 10 power 19 के मल्टीपल्स में ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके क्वांटाइजेशन के साथ, इस क्वांटाइजेशन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है. व्हेन यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन इज नॉट विजिबल. तब क्वांटाइजेशन दिखाई नहीं देता है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि इन अ क्लासरूम आई कुड हैव 5 स्टूडेंट, आई कुड हैव 6 स्टूडेंट, आई कुड हैव 10 स्टूडेंट. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वहाँ क्वांटाइजेशन खत्म हो जाता है. बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट नंबर ऑफ पीपुल, वी जस्ट टॉक अबाउट वी हैव 140 करोड़. सो वहाँ 130 करोड़ भी होगा, 131 करोड़ भी होगा, 131.9 करोड़ भी होगा. वहाँ जब क्वांटिटी बहुत लार्ज हो जाती है तो क्वांटाइजेशन विजिबल नहीं होता है. होता तो तब भी है, बट इट्स नॉट विजिबल. वो दिखाई देना बंद हो जाता है. ओके, क्वांटाइजेशन इज विजिबल ओनली इफ इट इज इन स्मॉल अमाउंट. 2, 4, 10, 20, 100, 1000 तक दिखता है. उसके बाद वो विजिबल नहीं रहता है. ठीक है. सो वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन विल, वी कैन टॉक अबाउट इट, इट विल बी देयर, बट उसके बारे में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. So everyone noted it down or still writing? Everyone done? Okay. Then I am moving to next slide. Conductors and insulator. I don't think I need to explain anything. You just note down the definitions. सभी को पता है what is conductors, what is insulator. I will say only one thing. All the materials which can form bonds or all the elements जिसने बॉन्ड बना लिए, प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग हो गई, all those are actually insulators. वो इंसुलेटर हो गए. उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. All the electrons are busy in making bonds. All those materials like first group, second group, iron means D group and all the things जो जहाँ केमिकल बॉन्डिंग बनाना नहीं पॉसिबल था, एल्युमिनियम, आयरन, ओके, ऑल दोज मटेरियल्स हैड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो वो हो गए कंडक्टर्स. ठीक है. सो उसके अलावा आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन इज नीडेड. जस्ट राइट इट. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो.
Everyone done? Okay, right. Okay, so can we move to next slide? Okay. Charging a body, how we can produce, as we said, na, we can do pair production. So how we can do pair production of charge on two bodies? So the best option is rubbing. If you will rub two objects, so due to friction, the charge will get produced. So what happens is, we know that everything is made of atoms. So atoms means in the center we have protons, and in outer orbits we have electrons. So if an object comes in contact with some other objects, for example my two hands, if these two hands comes in contact with each other, if you will see it at microscopic level, क्या हो रहा होगा? इस हाथ के इलेक्ट्रॉन्स को टच कर रहे होंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को टच करते हैं, प्रोटॉन्स कांट टच एनीथिंग, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो सेंटर में होते हैं, उसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो जब आप इन दोनों हाथों को रब करेंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मीन्स द बॉन्डिंग विल गेट ब्रेक, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से बॉन्ड से टूटकर मे बी पॉसिबल इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, दे विल गेट मिक्स्ड अप, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मिक्स्ड अप। सो इफ यू आर रबिंग सेम मटेरियल, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग विल बी सेम स्ट्रेंथ के बॉन्ड्स होंगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, एंड मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, सो नो इफेक्ट विल बी देयर। बट इफ यू विल रब टू डिफरेंट मटेरियल्स, अगर आप दो अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे पे रब करते हैं, देन देयर मे बी पॉसिबल दैट दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग वीकर बॉन्ड्स, इसके बॉन्ड्स कमजोर हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स टूटकर मेरे हाथ में ज्यादा जाएंगे। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट विल हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ओके, सो आपने ध्यान भी दिया होगा कि स्कूल्स में बच्चे प्लास्टिक स्केल को बाल पे रब करते हैं, एंड द स्केल गेट चार्ज्ड, वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, सो जस्ट बाय रबिंग वी कैन प्रोड्यूस सम चार्ज ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली इफ यू रब इबोनाइट रॉड विथ वूल, द इबोनाइट रॉड विल बिकम नेगेटिव। इबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड वूल विल बिकम पॉजिटिव। सो ग्लास रॉड को रब किया तो ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव, इबोनाइट रॉड को रब किया तो इबोनाइट रॉड बिकम नेगेटिव। दैट डिपेंड्स कि किसके बॉन्डिंग किस हिसाब से है। ठीक है, सिमिलरली यू ऑलरेडी, अब इतना हमारे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि वी जस्ट बेस्ड ऑन थ्योरी वी कैन से कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, बट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स यू कैन नो। एक्सपेरिमेंट करके पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है।
तो उसके लिए आपको कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट जो पहले से पता होना चाहिए कि वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो जस्ट इफ यू हैव ओनली टू ऑब्जेक्ट्स यू कांट से विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव। कोई थर्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में यू ऑलरेडी नो वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, वहां से पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लाउड्स के बारे में आपको पता ही है कि व्हेन क्लाउड्स मूव्स, वो एयर के दो लेयर एक दूसरे में फ्रिक्शन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोलिक्यूल्स इन द एयर। वहां पर बहुत कुछ, देयर आर मेनी फैक्टर्स। सो आइदर क्लाउड्स गेट रब्ड ऑन अनदर क्लाउड, और एयर के ही दो लेयर्स एक दूसरे पर रब करते हैं, तो उसके कारण क्लाउड्स जो हैं वो चार्ज्ड हो जाते हैं, और जब वो चार्ज ट्रांसफर होता है अर्थ में तो थंडरिंग होती है, ठीक है। सो क्लाउड्स गेट चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। अ कॉम्ब मूविंग थ्रू अ ड्राई हेयर, जो मैंने वो प्लास्टिक स्केल का एग्जांपल दिया था कि आप स्केल जब बालों पे ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है, और छोटे बच्चे आराम से वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े चिपका कर थोड़ा मैजिक दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एरोप्लेन, व्हेन एरोप्लेन मूव्स इन एयर, वो भी चार्ज हो जाता है, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो अगर एरोप्लेन को लैंडिंग के बाद डिस्चार्ज ना किया जाए तो उससे जो लोग भी उतरेंगे उन्हें करंट लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी चार्ज होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई द टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स के नहीं बनाए जाते हैं, नॉन कंडक्टर मटेरियल को ही किसी तरह से कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, सो एरोप्लेन के टायर्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल्स के बने होते हैं, सो दैट व्हेन इट विल लैंड बिफोर डिबोर्डिंग, जब हम डिबोर्ड करें उससे पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाए पूरी तरह से। ओके, सो उसका डिस्चार्ज होना जरूरी होता है, अदरवाइज जो लोग उतरेंगे उन्हें करंट लगेगा। आपने भी कभी कभार फील किया होगा कि व्हेन यू टच समथिंग, मे बी चेयर और लैपटॉप को तो चलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट व्हेनेवर समटाइम्स आई मे हैव फेल्ट दैट मैंने चेयर को टच किया और मुझे करंट का झटका लगता है। सो इन दैट केस आइदर द चेयर इज चार्ज्ड और माई बॉडी इज चार्ज्ड, किसी कारण से मेरा बॉडी या चेयर दोनों में से कोई चार्ज हो गया है, और मैं जब टच करता हूं तो पहली बार करंट लगता है, दोबारा टच करने पर नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही मुझे करंट लगा वो डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। सो फ्रिक्शन के कारण नेचर में भी ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स चार्ज होते रहते हैं, और उनमें से कुछ के एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन ओनली दिस थिंग, सारे एग्जांपल्स नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट नोट दिस एंड वन और टू एग्जांपल नोट कर लीजिए, ठीक है। नो नीड टू नोट डाउन एवरीथिंग, सारा चीज नहीं नोट करने की जरूरत है। आई थिंक दिस सिल्क वाला एग्जांपल और इबोनाइट वाला एग्जांपल, ये दोनों नोट कर लीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। बाउंडेड, हाँ, कंपेयर टू सिल्क। ओके, हाँ, इफ यू नो दैट कॉम्ब इन कॉम्ब क्या होगा, आई डोंट नो, इसमें तो लिखा भी नहीं। सो कॉम्ब, आपको पता है कि कॉम्ब इज पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट ब्रिंग द कॉम्ब नियर द ग्लास रॉड एंड सी वेदर इट्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग। So if it's attracting, it's opposite charge. If it's repelling, it's same charge. ठीक है। And there is no difference between positive and negative. अगर सिर्फ आपके पास एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव है तो उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है। So किसको पॉजिटिव बोलना है किसको नेगेटिव बोलना है, टोटली डिपेंड्स कि आप क्या नोमेनक्लेचर यूज किए हैं। सो इट्स ऑलरेडी डिफाइंड कि किसे पॉजिटिव बोलना है, तो आपको पता करने के लिए पहले से एक नोन चार्ज चाहिए जिसके बारे में आप जानते हैं वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इफ यू हैव 2 or 3 अननोन चार्ज, नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट वन नोन चार्ज यू नीड, किसी एक के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। नोमेनक्लेचर नेचर में नहीं किया है ना, नोमेनक्लेचर तो हमने किया ना पॉजिटिव नेगेटिव। Do we have more time? Oh, time is also over. So
Please note it down and let me know. Done, sir. So those who have finished, class is over. Other thing we will continue in next class. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Sir, Yes. sir, the body which gets current is what kind of charge is going to transfer? The positive ones or the negative ones? Movement. If you talk about movement, you know that positive charge means proton are near about 1800 times heavier than electrons. Okay, so whenever it comes to moves a charge, it is very difficult to move protons. Protons are very heavy compared to electrons. So whenever it comes to for movement of charge, electrons ही move करते हैं, protons never moves. Protons कभी move नहीं करते हैं. So always electrons, 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 सिर्फ electrons ही move करते हैं. And sir, what about the positive charge then? What is the particular particle Proton? known as positive charge? Proton. There are only three particles na. Electron, proton, neutron. Electron is negatively charged, proton is positively charged, neutron have no charge. So whenever you talk about positive charge, it's proton. Whenever you talk about negative charge, it's electron. But movement हमेशा electron का ही होता है. Positive charge can't move. So if there are two objects, what happens कि इसके पास भी protons होते हैं, इसके पास भी electrons होते हैं. Every object is having protons and electrons. So अगर यहाँ का electron move करके यहाँ चला जाए, तो क्या होगा? This object will have less number of electrons, more number of protons, so positively charged. This object will have more electrons compared to proton, so this will be negatively charged. Movement proton का नहीं होता है, हमेशा movement electron का ही होगा. Sir, but proton is heavier than electron, no? Much heavier. So how could electron dominate proton? Dominate कहाँ कर रहा है? It's not dominating. So more number of electrons, we call it as negative. हाँ, तो Particle. नंबर ज्यादा हो गया ना. So heavy होने से नंबर का क्या रिलेशन है? काउंटिंग तो काउंटिंग है, doesn't matter whether it's heavy or light. Okay, sir. Okay, so दोनों का Okay, sir. Bye, sir. Good afternoon. good afternoon. Answer the rubbing, the amount of rubbing. There is any threshold rubbing, means any particular minimum amount of rubbing. It's not like that. We actually don't know any numbers related to rubbing. We just know that if we rub, the some charge will get produced. ठीक है ना? We Sir, but we there don't would have be any a certain. numerical physics behind this rubbing thing. Oh, okay, sir. Okay, so we can't talk about numbers while rubbing. We just know that either it's positive, negative. थोड़ा जाता है, थोड़ा आता है. How much is this? थोड़ा we don't know. We can't measure the rubbing. हाँ, it's very difficult to measure it. It's very complicated to measure it. Oh, okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you.